हरियाणा के एक डीजी लेवल के अधिकारी का तबादला जिस तरह से हुआ, उससे सारा देश आज स्तब्ध रह गया। अधिकारियों के तबादले तो रोज होते हैं, उसकी भी नीति होती है, लेकिन आज अचानक इस अधिकारी का तबादला क्यों हुआ? तो कांग्रेस के लिए प्रथम परिवार है, उसके जमीन के व्यवहार पर रोक लगाई और उसकी जांच प्रारंभ की। सबसे बड़ा गुनाह है ये, और इसलिए कब ये तबादला किया गया? रात को 10 बजे। दूसरे दिन कार्यालय के समय तक भी रुकने को फुर्सत नहीं। क्यों फुर्सत नहीं? क्योंकि इससे ज्यादा बड़ा अपराध हो ही नहीं सकता। इतनी हड़बड़ी क्यों? देश जानना चाहता है। सरकार का अधिकार होता है, लेकिन उसका कारण भी होता है। और जिस तरह से एक जमीन व्यवहार के बारे में उन्होंने आदेश दिए, उसकी जांच प्रारंभ की और उसके म्यूटेशन को कैंसिल किया, तो उसके कारण उसकी तबादला किया गया। संदेश ये देना चाहते हैं कि अगर पहले प्रथम परिवार के खिलाफ कुछ बोलोगे तो भुगतोगे। अब हरियाणा सरकार ने कहा हम जांच करेंगे। जांच डील की नहीं होगी, जमीन प्रकरण में क्या हुआ उसकी नहीं जांच हो रही है। जांच अधिकारी की होगी कि उसने ऐसे आदेश क्यों दिए। यह कांग्रेस की रीत है, और इसलिए द कंट्री वांट्स टू नो व्हाई an officer of Haryana government gets transfer orders in the night at residence at 10 p.m. What was the hurry? Why the government could not stop till the next working day? What is the crime? The only crime, it suggests that he gave the orders of cancellation of mutation and started probe and ordered something about the land dealings of Mr. Vadra. If it is true, we condemn this approach of the government and the action of the government. And this also clearly indicates that there is a message in this transfer that if you do something against the first family of the Congress, you will suffer, you will be punished, you will be victimized. And that is why we are condemning this transfer, otherwise which can be termed as an administrative action. And what is worse is that government is not probing the deal or the irregularities or the undue benefits. That is the BJP demand, that there has to be a proper probe. But instead of probing the transaction and the deal, they are now inquiring into the conduct of the officer, not about the deal. After all, that was a major land was from scheduled caste families, which they got in a government scheme, as reported by media. Then it was said that it was purchased for a sum of around 8 crore rupees, major amount of which is come from as an overdraft from Corporation Bank.
But Corporation Bank has denied. And then suddenly land use is changed from agriculture to resident. And in 65 days, with the investment of 8 crores, you gain net 50 crores. That is the starting point. And so BJP has demanded inquiry into the deal. कोई जमीन खरीदेगा दलितों की, तो मीडिया ने यह भी सवाल उठाया कि ये दलितों को अनुदानित स्कीम में दी गई हुई जमीन है, तो वो क्या खरीद सकते नहीं खरीद सकते, एक इशू है। फिर वो 7.5 करोड़ में खरीदी जाती है, उसके लिए बैलेंस शीट में दिखाया जाता है कि कॉरपोरेशन बैंक से ओवरड्राफ्ट है। कॉरपोरेशन बैंक ने मना किया कि उन्होंने कहा कि है ही नहीं ओवरड्राफ्ट, एक पैसे का भी। और फिर तुरंत 2 महीने में लैंड यूज को एग्रीकल्चर से रेसिडेंशियल हो जाता है और 65 दिन में 65 करोड़ में जमीन बिक जाती है 58 करोड़ में, और 50 करोड़ फायदा होता है। और ये शुरुआत है, और बाकी भी बहुत सारे मीडिया ने इतने सारे डिटेल्स लाए हैं सामने, और इसमें लोग सजेस्ट कर रहे हैं क्विड प्रो को भी है, क्योंकि किसी का निजी धंधे की बात है तो हम नहीं करते। If it's a private business, we'll not like to talk about that. But when there is a quid pro and undue benefit charges, they need to be probed. And that is why BJP is demanding right from day one the probe. It's now a series of scams. The VBS scam. Congress said that diary entries are not admissible evidence. It is not diary, Baba, this is books of accounts. There are daily entries in the CMD account. Then there are entries with names and with initials to whom payments are made. All payments are made in cash. And there are 5 entries of payment of VBS to the VBS. Ab the then steel minister is Veerbhadra Singh. He denies, I don't write like VBS. Okay, but they may be writing like that. It is an admissible evidence as per as the Evidence Act, and a relevant evidence, because it is neatly done. It is not as I that day told, कोई कादम्बरी तो है नहीं. We are asking one question to the Congress. When you have the books of accounts with your department for last 2 years, what stopped you from taking action against the company? Because bribe giving is also a crime. So if there are books of accounts and there are entries after entries and series of entries in your seized material, you must act against the company, because it's an admissible. Why you are not acting against company? Because you want to cover up and you want to protect your, because it will boomerang on you. वीरभद्र सिंह जी जब इस्पात के मंत्री थे, एक निजी कंपनी है इस्पात कंपनी, उसके बुक ऑफ अकाउंट्स में रोज के खर्चे में लिखते हैं अपने अध्यक्ष और कार्यकारी संचालक के अकाउंट्स में रोज की एंट्रीज है कि आज इसको पर खर्चा किया, आज इसको इतने पैसे दिए, आज इसको इतने पैसे दिए, कैश दिए। और ताज्जुब की बात है, उसमें सीबीआई और ईडी का भी नाम है, नसीब आईटीओ का नाम नहीं है। उसमें तो सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का भी नाम है कि उनको भी खर्चे के लिए पैसे दिए। अब इतना सरकार दिवालियापन हो गया कि उनको खर्चे के लिए कंपनियों से मांगना पड़ता है, मुझे पता नहीं था। और
वीरभद्र जी कहते हैं कि मेरे इनिशियल मैंने कभी वीबीएस नहीं लिखे। अरे आपने नहीं लिखे, लेकिन उन्होंने लिखे। और अगर समझो कंपनी के ये अकाउंट्स की डेली एंट्रीज है जो एविडेंस एक्ट के अनुसार भी सबूत का एक सबूत माना जाता है, तो कंपनी पर कार्रवाई क्यों नहीं की? यही तो हम सवाल उठाना चाहते हैं। वीबीएस कौन पता नहीं है, इसलिए कैसे ढूंढोगे? लेकिन कंपनी पर कार्रवाई क्यों नहीं की जब 2 साल से आपके हाथ में सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स है? क्योंकि कांग्रेस को पता है कि अगर कंपनी पर कार्रवाई करोगे तो उन पर ही उल्टा पड़ेगा, कांग्रेस पर ही। और इसलिए सारे पर पर्दा डालने का काम हो रहा है। अब कल बेनी प्रसाद वर्मा जी ने तो कमाल कर दिया। उन्होंने तो कहा जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता वो समर्थन किया। और प्रैक्टिकली उन्होंने क्या कहा कि 71 लाख केंद्रीय मंत्री होकर, तो उन्होंने 71 करोड़ होते तो मैं समझ सकता था। तो इसका मतलब उन्होंने एक तरह से रेड कार्ड ही दिखा दिया, रेड कार्ड ही बता रहे ना बेनी प्रसाद जी कि केंद्रीय मंत्री 70 करोड़ एंड अबाउ, मिनिस्टर ऑफ स्टेट दिस एंड दिस, कांग्रेस का सरपंच ये रेट है, कांग्रेस का मंत्री ये रेट है, कांग्रेस का अब क्या हुआ राज्य सरकार में है तो ये रेट है। तो ये रेट का ही उसने खुलासा किया है। He has practically given the red card of corruption. सवाल ये आता है कि पीएम साइलेंट मोड पे क्यों है, प्रधानमंत्री चुप क्यों है? This is not issue of a private party. It's a issue of governance. It's a issue of corruption. देश के लोकतंत्र को खा रहा भ्रष्टाचार और सुशासन न देते हुए पूरा कुशासन हो गया, दुशासन हो गया। जवाबदेही प्रधानमंत्री की बनती है। प्रधानमंत्री चुप क्यों है? वो अपना मौन कब छोड़ेंगे? और इसलिए तीनों का हमने बात की है, प्रेस नोट भी दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।